So hello guys, welcome to Unacademy. I'm Shubdeep Datta, and we will cover up the rest of the isomerism part. And please try to listen to the full lecture so that you can get the maximum benefit. So these are the slides, guys. Okay. So welcome to Target Top 100 Ranks MST CT 2021. I'm Shubdeep Datta, and I will be taking your chemistry classes. I am an alumni of National Institute of Technology Durgapur, and I have some 5 plus years of teaching experience. I specialize for IIT JEE and NEET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test. So guys, as you might already know that Unacademy is India's largest learning platform, and if you get the plus subscription you can get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. Okay, so please get the subscription today. You can begin by downloading the Unacademy learning app from the Google Play Store, and then you can continue with the sign up and then the other procedures as well. Okay, you can also join us on Telegram app. What you have to do is to download the Telegram app from the Google Play Store, and then you have to type the link in the URL, and this is the URL, guys. https then something something, then crack Maharashtra CET exam, right? So you can also connect with us on Telegram app via this method. Next is the subscription plan. What would be the charges for the subscription plan? For 1 month it is around 2700 rupees, and if you see here, uh, if you take 24-month subscription at one go, you have to pay something around 21,600 rupees, which is like 900 rupees per month, right? And on top of that, this is the thing. This is the referral code that if you use, then you will get a 10% flat discount, guys. Okay, if you use this code SHUBHDEEP, you will get a 10% flat discount, which means that your subscription would be reduced to 21,600 minus 2160. This is the amount that you might not want to pay if you use this referral ID, that is SHUBHDEEP. Okay, so we will begin with open board Telegram app. ओके, तो गाइस हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें एक अलग तरह का आइसोमेरिज्म आता है जिसको बोलते हैं चेन या रिंग आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसको अगर हम देखें तो इसका DU कितना होगा? 1 होगा, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6। तो अगर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 1 रिंग भी बना सकते थे, है ना। तो 1 रिंग बनाने के लिए हम लोग CH2 और CH2 इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। देखो, इसका भी DU कितना है? 1 है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? C3H6, ठीक है ना। लेकिन ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये कैसा है? सैचुरेटेड साइकिल है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है। तो जहाँ पर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होगा वहाँ पे उसको भी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में सेम चीज़ को बोलूँ, तो जहाँ पर भी रिंग और चेन में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा तो उसको एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा, जो कि फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है। दिस इज अ केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है? तो देखिए ज़रा,
अगर एक और एग्जांपल देखें तो जैसे कि CH3 है, CH2 है ना, CH है डबल बॉन्ड, CH2 है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है यहाँ पर, है ना। तो बेसिकली चलो ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब इस पूरे में टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, और 4 कार्बन के साथ में DU इसका अगर 1 है तो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, मैं 4 कार्बन ऐसे अगर जोड़ दूं तो देखो यहाँ पर भी कार्बन 4 है और DU कितने हैं 1, तो बेसिकली इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना। और अगर मैं एक और बनाऊँ जिसमें DU को मैं 1 रखूँ साइकिल बनाकर, और ये जो चौथा कार्बन है ना उसको मैं साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह एज अ मिथाइल ग्रुप ले लूँ, तो बेसिकली यहाँ पर भी कार्बन टोटल कितने हैं 4, DU 1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2 और इसको नाम दे देता हूँ 3, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है तो बेशक ही ये आइसोमर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अगर हम 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, 1 और 2 आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जिसको कि और प्रिसाइसली रिंग चेन आइसोमर बोला जाएगा, ठीक है। इसको और प्रिसाइसली रिंग चेन आइसोमर बोला जाएगा। ओके हो गया। ओके नेक्स्ट, अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करें, अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 2 और 3 आपस में क्या होंगे, 2 और 3 आपस में होंगे, देखो यहाँ पे साइकिल जो है वो 4 कार्बन की है, यहाँ पे साइकिल 3 कार्बन की है, तो साइकिल का अगर लेंथ डिक्रीज करता है तो वो चेन आइसोमर कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो 1 और 2 आपस में फंक्शनल आइसोमर है, 2 और 3 आपस में चेन आइसोमर है ना। और 1 और 3 क्या होंगे, फिर वही रिंग चेन आइसोमर, मतलब फंक्शनल आइसोमर होंगे, जिसमें कि प्रिसाइसली इसको बोला जाएगा रिंग चेन आइसोमर। क्या ये इतना हो गया सभी को, क्या ये इतना हो गया सभी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये पहले ही मैंने बताया था ना कि 1 डिग्री अमीन जो है वो फंक्शनल आइसोमर होता है विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री अमीन या तो 3 डिग्री अमीन के, सही है ना। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ले ली, यहाँ पर CH3 ले लिया और यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया। तो बेसिकली अगर यहाँ पे NH2 लेते हो ना तो ये NH2 प्राइमरी अमीन होगा, ठीक है ना। और अगर मान लो इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और यहाँ पे रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचता है NH, ठीक है। तो ये देखो नाइट्रोजन जो है इस, अब इसमें ये सेकेंडरी अमीन है, तो बेसिकली ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। ये दोनों आपस में आइसोमर्स तब होंगे जब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। तो देखिए बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग इसके पास भी है, एक बेंजीन रिंग इसके पास भी है, ठीक है ना। इस बेंजीन रिंग के अलावा एक कार्बन एक्स्ट्रा यहाँ पर भी है, एक कार्बन एक्स्ट्रा यहाँ पर भी है, और साथ ही साथ एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी है। तो अपने आप जो हाइड्रोजन होंगे ना वो अपने आप बराबर आ जाएंगे, समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब तो नहीं है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, और अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो उसको फंक्शनल आइसोमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंक्शनल आइसोमर बोला जाता है, ठीक है।
इसको नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट लेते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट लेते हैं मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म क्या होता है ना। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस in the nature of alkyl groups present on a पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसके दो वैलेंसी होती है क्योंकि दो बॉन्ड खाली हैं इसके, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी एक तरह के आर से और दूसरी वैलेंसी दूसरी तरह के आर से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जब किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है ना, फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है, पॉलीवैलेंट होता है, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, तब हम क्या कर सकते हैं कि जो साइड में लगे एल्काइल ग्रुप्स हैं उनकी चेन में फ़र्क ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चेन जो है वो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से सेपरेट होनी चाहिए, है ना। जैसे इस चेन, इस पॉलीवैलेंट ऑक्सीजन की वजह से एक तरफ एक आर का ग्रुप है तो दूसरी तरफ दूसरे आर का ग्रुप है। अगर तब इसके चेन में फ़र्क आता है तब हम लोग बोलेंगे कि वो क्या फॉलो कर रहा है, मेटामेरिज्म फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से पहले इसके कुछ नियम है वो लिख लें। इन अ पेयर ऑफ मेटामर्स द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मस्ट रिमेन सेम, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ईथर है ना तो ये अल्कोहल अगर हो जाता है तो वो फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा, तब वो मेटामर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे कि मेरे पास मान लो एक ऐसा थायोईथर है कि जहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि मेरे पास है C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे देखा कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पर C2H5 कर दिया, यहाँ पर C2H5 कर दिया, तो बेसिकली इथाइल ग्रुप पहले इस एस्टर ग्रुप के डबल बॉन्ड की तरफ था, है ना। अभी इथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन की तरफ है ना। और मिथाइल ग्रुप जो है वो इथाइल की जगह आ गया और जो इथाइल ग्रुप है वो मिथाइल की जगह पे आ गया। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर एस्टर ग्रुप था ना, इसकी वैलेंसी 2 थी, इसके इर्द गिर्द आपने एक बार यहाँ पे मिथाइल रख दिया, एक बार यहाँ पे इथाइल रख दिया, इसके कॉन्ट्रेरी एक बार यहाँ पे मिथाइल रखा गया, एक बार इथाइल रखा गया। तो पॉलीवैलेंट ग्रुप के दोनों तरफ वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम एल्काइल ग्रुप चेंज करते हैं फिर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम रहता है तो उसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। और भी एग्जांपल्स लेंगे इसके, और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि थायोईथर है ना, 2 कार्बन 1 सल्फर, फिर मान लेते हैं 3 कार्बन, ठीक है ना। इस तरह का थायोईथर है। तो बताओ ये थायोईथर है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ का इसका रिंग चेंज कर देते हैं। जैसे सल्फर है, ये C, लेकिन यहाँ पे ये पॉलीवेलेंट एटम हो गया और यहाँ पे एक C, यहाँ पे C। तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट ओरिएंटेशन क्या है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ में R की वैल्यू डिफरेंट है।
तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर आर की वैल्यू डिफरेंट आती है तब इसको क्या बोला जाएगा, मेटामर बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, मेटामर बोला जाएगा। जैसे कि एस्टर्स में देखते हैं, है ना, एस्टर्स में, एस्टर्स तो देख ले चलो, अभी सल्फोनेट एस्टर देखते हैं, सल्फोनेट एस्टर देखते हैं। सल्फोनेट एस्टर मतलब जैसे कि एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच है ना, तो यहाँ पे ओ एच नहीं लेंगे, यहाँ पे C2H5 ले लेते हैं और यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। तो ये है एक। अब यहाँ क्या करेंगे कि सल्फोनेट जो ग्रुप है ये, इसके रिस्पेक्ट में ये मिथाइल ग्रुप अगर हम यहाँ रख दें O के साथ में, तो हम क्या यहाँ पे C2H5 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा तो सल्फोनेट एस्टर ये भी है, सल्फोनेट एस्टर ये भी है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला केवल सेम है, कंपाउंड अलग अलग है। और कंपाउंड जो है वो सल्फोनेट जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, उसके रिस्पेक्ट में एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, दैट्स इट, है ना। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है इथाइल मिथाइल, और यहाँ पर भी इथाइल और मिथाइल ही है, लेकिन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो मतलब एल्काइल रिंग जो होगा वो भी डिफरेंट होगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आपस में मेटामर्स होंगे, ये क्या होंगे, मेटामर्स होंगे, दैट्स इट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, क्या, एनहाइड्राइड का ले लेते हैं। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे C। तो देखो इसके टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, एक बॉन्ड इधर से है और एक बॉन्ड इधर से है, तो इसकी वैलेंसी तो 2 हो जाएगी, है ना। तो अगर मान लो हमने क्या लिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस तरफ हमने ले लिया C2H5 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया C2H5, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉलीवेलेंट एनहाइड्राइड ग्रुप है ना, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक कार्बन अगर हम मान लो कम कर दें, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H7, ठीक है ना। लेकिन देखें ज़रा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ साथ यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ साथ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी सेम है ना। रिंग चेन आइसोमर है नहीं, क्योंकि पॉलीवेलेंट के रिस्पेक्ट में, पॉलीवेलेंट ग्रुप के रिस्पेक्ट में चेन का डिफरेंस आता है। जब पॉलीवेलेंट ग्रुप के रिस्पेक्ट में चेन का डिफरेंस आता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं, ठीक है ना, मेटामर्स। ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, मेटामर रिलेशन रखते हैं, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एमीन बनाया, ठीक है ना, ये NH2 है, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने 4 कार्बन का एमीन बनाया, ठीक है ना। तो ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी एमीन है, ठीक है। सेकेंडरी अगर बनाए तो मान लेते हैं कि एक तरफ 2 कार्बन ले लेते हैं, एक तरफ 2 और कार्बन ले लेते हैं, और यहाँ पे NH ले लेते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन है। और मान लेते हैं एक और हम वो बनाए, यहाँ पे C ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, बाकी 2 C यहाँ बचे, दोनों को यहाँ डाल दिया, तो ये टर्शरी अमीन है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। बट अगर मान लो मैंने सेकेंडरी अमीन ही बनाया, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन, और यहाँ पे NH है, तो ये सेकेंडरी अमीन है, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, ठीक है ना। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक और सेकेंडरी अमीन हम ऐसा भी बना सकते थे कि यहाँ पे 1 कार्बन रखा और यहाँ पे 3 कार्बन रखे, ठीक है ना, ये भी सेकेंडरी अमीन है। बट इन दोनों में रिलेशन क्या है, चेन रिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको देखो, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ की बात है। जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ की बात होगी
तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे। ध्यान रखना, जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है सेम डिग्री का अमाइन है और दोनों तरफ जो है वो चेन का डिफरेंस आता है या सब्सिट्यूएंट का डिफरेंस आता है, तब हम लोग वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग तब बोलेंगे कि दोनों प्राइमरी अमीन हैं और दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, मेटामर का रिलेशन है। क्योंकि अमोनिया एमीन डेरिवेटिव है ना, उसकी टोटल वैलेंसी मैक्सिमम 3 हो सकती है। मैक्सिमम 3 कब होती है, यहाँ पर जब नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी R से भरी जाएंगी। हो सकता है 1 भरी जाए, हो सकता है 2 भरी जाए, लेकिन मैक्सिमम कितनी भरी जा सकती है, 3। तो ये एमीन का ग्रुप है, ये एमीन का ग्रुप है ना। यहाँ पे अगर केवल एक R लगाए तो 2H आ जाएगा और इसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन, है ना। अगर हमने एमीन के दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप लगाएं और एक तरफ H लगाया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन, एंड सो ऑन। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मेटामर निकालने के लिए हमें अगर सेकेंडरी कोई मिलता है एमीन के रूप में, तो इसका मेटामर भी सेकेंडरी ही होना चाहिए। क्या ये चीज़ समझ में आती है? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक कंपैरिजन टेबल देखते हैं। एक कंपैरिजन टेबल देखते हैं, ठीक है। अगर कोई पेयर ऑफ चेन आइसोमर है, कोई अगर पेयर ऑफ पोजिशनल आइसोमर है, या कोई पेयर ऑफ मेटामर है, या कोई पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर है, तो देखें वहाँ पर सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेम, सबके लिए सेम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ड्यू जो होना चाहिए वो भी सबके लिए सेम होना चाहिए। ड्यू चेंज कैसे हो सकता है? अगर ड्यू चेंज हो रहा है मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं रहा, है ना। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पेयर ऑफ CI में सेम रहना चाहिए, है ना। पेयर ऑफ PI में भी सेम रहना चाहिए, पेयर ऑफ मेटामर में भी सेम रहना चाहिए, बट पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप का ही तो चेंज आएगा और तब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर डिफरेंट आ जाता है ना, सॉरी, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, है ना, तब हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर वो फंक्शनल आइसोमर है। और लास्ट आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम सब में डिफरेंट होगा, ठीक है ना, सब में डिफरेंट होगा। यहाँ पर भी डिफरेंट, यहाँ पर भी डिफरेंट, यहाँ पर भी डिफरेंट। तो बेसिकली हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें बनाने हैं ना, तो हर एक आइसोमर के जो नेम होंगे, है ना, आईयूपैक नेम, हर एक स्ट्रक्चर के आईयूपैक जो नेम होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। हर एक स्ट्रक्चर के आईयूपैक नेम कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे,
ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। ठीक है ना, बताओ कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला काम क्या होगा, du निकालना। du कितना होगा, C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाई 2। तो c कितना है 4+1 माइनस एच कितना है 8 प्लस एक्स, एक्स कितना है 0 माइनस n कितना है वो भी 0 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज़ 5 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 1। अब du अगर 1 है तो इसका मतलब या तो एक पाई बॉन्ड रखेंगे या तो एक साइकिल रखेंगे। ठीक है ना, या तो एक पाई बॉन्ड रखेंगे या तो एक साइकिल रखेंगे। तो सबसे पहले साइकिल का देखते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें, du 1 है मतलब या तो एक पाई बॉन्ड है या तो एक साइकिल है। ठीक है ना, और फॉर्मूला क्या है C4H8O, है ना। तो सबसे पहले जो साइकिल्स वाले हैं ना, रिंग वाले, वो देखते हैं। अभी O का मतलब क्या हुआ, O का मतलब अगर साइकिल में देखेंगे तो साइक्लिक एस्टर हो सकता है। अब अगर साइकिल यूज़ कर ली तो du1 कंज्यूम कर लिया, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, साइकिल के साथ में देखेंगे तो सारे के सारे सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड किसी में भी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को, कितने 4 है ना, तो 1 2 3 4, 4 हमने क्या किए, कार्बन बनाए और एक ऑक्सीजन यहाँ से जोड़ दिया, मतलब यहाँ पे हमने साइक्लिक ईथर बनाया। चलेगा, साइक्लिक ईथर बनाने के बाद में हमें किस बारे में सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम रिंग को थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, और उसके बाद साइक्लिक ईथर बनाते हैं। तो रिंग में अभी टोटल 5 मेंबर है, तो रिंग में आप टोटल 4 मेंबर रखें, है ना। तो 4 मेंबर का रिंग साइक्लिक ईथर में कैसा होगा, इस तरह का। तो अगर 4 मेंबर का रखा है तो हम लोग मिथाइल ग्रुप को कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, या तो मिथाइल ग्रुप को हम क्या लगा सकते हैं, O के ऑपोजिट यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई चारा तो है नहीं। अब हम क्या करते हैं कि 3 मेंबर का रिंग लेते हैं, इस तरह का ईथर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह का। अब अगर हमने ईथर को इस तरह का लिया है तो यहाँ पे हमें 2 कार्बन और बाकी हैं, तो 2 कार्बन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, या तो 2 कार्बन हम ऐसे ले सकते हैं, या तो दोनों कार्बन हम किस तरह से ले सकते हैं, साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह। एक ईथर नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। ठीक है ना, इस तरह से ले सकते थे, चलेगा। चलेगा, तो साइक्लिक और क्या हो सकता है बताओ। O की पोजीशन क्या हम कहीं पे चेंज कर सकते हैं, O की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे, अगर हम कार्बन को यहाँ ले आए तो यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता। अच्छा, O की पोजीशन तो यहीं पे रहेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल्स को देखते हैं। 3 तक यहीं पे रहेगा और तो बाकी ख़त्म है। अब हम अल्कोहल्स को देखते हैं। अल्कोहल्स के लिए जो सबसे बढ़िया काम होगा वो ये होगा कि तुमने साइक्लोब्यूटेन बनाया, इसके ऊपर OH लगा दिया। अब साइक्लोब्यूटेन के ऊपर अगर तुम OH लगाते हो, साइक्लोब्यूटेन के ऊपर अगर तुम OH लगाते हो तो नेक्स्ट तुम्हारा साइकिल कम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे OH ले लेते हैं। ठीक है ना, और प्लस इसके साथ में OH में जो मिथाइल की पोजीशन है उसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कौन कौन से बाकी हैं,
देखो, इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप है ये, यहाँ पे O है और यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 1 1 2 3 4 इस तरह से ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। ओपन चेन हमने साइकिल्स तो बनाई नहीं है एक भी। और क्या बना सकते हैं? इसका अगर देखें तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, OH, ठीक है। और हम कैसे बना सकते थे? अच्छा, केवल साइकिल्स बनाने ना, ओनली साइकिल्स, ओनली साइकिल्स में यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं अब देख लें, बस फाइनल एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ऐसा ले सकते हैं क्या? टोटल कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 है ना, तो इस तरह से ले सकते हैं, बोलो। इस तरह से ले सकते हैं क्या? ये भी एक ईथर एक तरह का, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, है ना। तो इस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। सो गाइज प्लीज़ बी ऑन टाइम और एकदम भी कुछ मिस नहीं करना है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है हमारी, हम लोग कोर्स भी अच्छे टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज प्लीज़ बी ऑन टाइम एवरी टाइम एंड डोंट मिस एनी ऑफ द अनअकैडमी lectures. So guys, this was me Shubhdeep Datta. Thank you for watching and please join us on Crack Maharashtra CET channel and subscribe to the channel, leave the YouTube comments and please join the Telegram app. Also please hit the bell icon for further notifications so that every time we make a new video, notification will be sent to you so that you don't miss any of further classes, right? So use this code SHUBHDEEP. This is my referral code. You can get a 10% flat discount without any questions asked. So, thank you guys. This was Shubhdeep Datta signing off.